सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का मैं अमनप्रीत कौर स्वागत करती हाँ। कि सरकार जथेबंदियां नहीं बन सकेगी सहमति, जाणो किसानों दी मुख मंगा। आप दी सीनियर आगू आतिशी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड लॉन्च किए। श्रोमणी अकाली दल के बुलारे अर्शदीप सिंह गलेरिया ने मान सरकार ते तंज कसे। आओ शुरुआत करते हैं अज इस पहली वड्डी खबर तो कि सरकार जथेबंदियां नहीं बन सकेगी सहमति, जाणो किसानों दी मुख मंगा। पंजाब ਦੀਆਂ किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ मोहाली चंडीगढ़ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕੇਡਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕੱਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਤ 11:45 ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਡਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਫਦ ਤੋਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਵਫਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਆਈਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਏਕਤਾ ਪੇਚ ਰਾਹੀਂ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ 13 ਨਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਕੱਟ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਬੋਨਸ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4800 ਰੁਪਇਆ ਵੀਡੀ ਸਕੀਮ ਲੋੜ ਵਾਧਾ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਮੱਕੀ ਤੇ MSP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਸਾ 44 ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ PAU ਐਕਸਪਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੂਸਾ 44 ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ PAU ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਸਾ 44 ਆਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਮੱਧਮ ਵਪਾਰਨ ਖਿੱਦ ਚਾਕਰੀ ਭਿੱਖੇ ਮੰਗੇ ਗਵਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣਾ। ਖੇਤੀ ਨੇ ਉੱਤਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਆਬਾਦਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ SKM ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। आप दी सीनियर आगू आतिशी ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। आप
ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਤਿਸ਼ੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। 27 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। पूरी दिल्ली ਅਤੇ पूरा पंजाब ਇਹ जानना चाहता है कि ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ हादसे ਲਈ कौन जिम्मेदार है। ऐसी आग लगी कि जो लोग उस आग में गुजर गए आज तक उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। 27 में सिर्फ 8 लोगों की पहचान हो पाई। पूरी दिल्ली, पूरा देश जानना चाह रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसा कैसे हो जाता है कि इतना इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है कि इल्लीगल कमर्शियल एक्टिविटी हो जाती है और कोई सवाल पूछने नहीं आता, कोई एक्शन लेने नहीं आता। जिस मुंडका की इमारत में आग लगी वो लाल डोरा की एक्सटेंशन में ज़मीन थी। लाल डोरा की एक्सटेंशन में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने की कानून के अनुसार अनुमति नहीं मिलती है। तो मुंडका की इस इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही थी? किसने अनुमति दी थी जिसके तहत इस बिल्डिंग में बिजनेस चल रहे थे, इस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, जिसकी वजह से आज 27 लोगों की जान चली गई है। इस सवाल का जवाब हर दिल्ली वाले के पास है कि अगर वहाँ पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ तो किसने करवाया, अगर वहाँ पे इल्लीगल अनुमति दी गई तो किसने दी। इस सवाल का जवाब हर दिल्ली वाला जानता है क्योंकि पूरी दिल्ली में इल्लीगल काम करवाने वाले एक ही लोग हैं और वो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। पूरी दिल्ली में आज अगर अवैध निर्माण होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के आशीर्वाद के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पैसे लेने आते हैं, उगाही करने आते हैं अवैध निर्माण के लिए। अगर पूरी दिल्ली में कहीं पर इल्लीगल कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो उसकी अनुमति कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम। वो पैसे लेकर जाते हैं और अवैध और इल्लीगल कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन देते हैं। और मुंडका की इस इमारत में भी बिल्कुल ऐसा हुआ। आज हम आपके सामने ये कागजात पेश कर रहे हैं जिसके तहत मुंडका की इस इमारत को दिल्ली नगर निगम नॉर्थ एमसीडी ने कमर्शियल एक्टिविटी करने की अनुमति दी। ये लाइसेंस मनीष लाकड़ा जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं उनको दिया गया कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए। जब कानून ये कहता है कि लाल डोरा एक्सटेंशन में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि ये लाइसेंस मनीष लाकड़ा को कैसे मिला। जब कानून ये कहता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी तो फिर मनीष लाकड़ा को मुंडका की इस इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन कैसे मिली? मैं बताती हूँ कैसे मिली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही काम है। एक काम है दिल्ली के लोगों से अवैध वसूली करना, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अपने पार्टी के गुंडों को, अपने पार्टी के लफंगों को हर तरह से बचाना और हर तरह से समर्थन करना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं मनीष लाकड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साहिब सिंह वर्मा जी के चाचा के साथ वो कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मनीष लाकड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि गैर कानूनी तरीके से मुंडका की इस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता को दिया। और ना सिर्फ इतना,
आज अगर हम पूरी दिल्ली में देखने जाएंगे तो इस प्रकार के लाइसेंसेस, चाहे अपने नेताओं को, चाहे अपने गुंडों को, या चाहे भाजपा के पार्षद अवैध वसूली करके ऐसे इल्लीगल लाइसेंस पूरी दिल्ली में उन्होंने बांटे हुए हैं। आज अगर दिल्ली में किसी भी इमारत में आग लग जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर आज दिल्ली में कोई भी इमारत ढह जाती है, गिर जाती है क्योंकि वहां पे अवैध निर्माण हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, क्योंकि पिछले 15 साल में जब से वो एमसीडी में शासन कर रहे हैं, हर प्रकार की अवैध गतिविधि उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी उगाही के साथ, उनकी जेब भरने के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज आम आदमी पार्टी इस बात की जांच की डिमांड रखती है कि एक लाल डोरा एक्सटेंशन में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने कमर्शियल एक्टिविटी करने का लाइसेंस कैसे दिया। हम आज ये भी जांच की डिमांड करते हैं कि इस प्रकार के कितने ऐसे इल्लीगल लाइसेंस हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने दिए हुए हैं, जो पूरी दिल्ली के लोगों की जान माल पर आज खतरा जिसकी वजह से बना हुआ है। धन्यवाद। देखिए अभी वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, लेकिन ये एक क्रिमिनल इंक्वायरी है जिसकी जरूरत है कि जब कानून ये कहता है कि लाल डोरा की एक्सटेंशन की जमीन में कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो आज हम ये कैसा कागज देख रहे हैं जहां पे नॉर्थ एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर एक आधिकारिक तौर पे, एक लीगल तौर पे परमिशन देते हैं एक इल्लीगल काम करने के लिए, एक ऐसा इल्लीगल काम जिसकी वजह से आज 27 लोग अपनी जान खो चुके हैं। और सवाल यह भी उठता है कि यह तो एक इमारत है जिसका आज मामला हमारे सामने आया है। पिछले 15 साल में एमसीडी ने ना जाने कितने ऐसे इल्लीगल लाइसेंसेस भ्रष्टाचार कर करके, उगाही कर करके, पैसे बनाकर पूरी दिल्ली में बांटे हैं, जिसकी वजह से आज वहां पर काम करने वालों को, आज वहां पर रहने वालों की जान को खतरा बनाया है। और ये जान का खतरा सिर्फ उन लोगों को नहीं है जो उस बिल्डिंग में रहते हैं। अगर किसी ऐसी बिल्डिंग में आग लगती है तो जिसके पास इल्लीगल लाइसेंस है वो तो खतरे में है ही, लेकिन उसके आसपास का सारा इलाका खतरे में आता है, क्योंकि जब आग एक बार लगती है वो ये नहीं देखती है कि जी इस बिल्डिंग का इल्लीगल लाइसेंस था, यहां पे आग लग गई। एक बार जब आग फैलने लगती है तो पूरे इलाके के लोगों की जान को खतरा होता है, और इस खतरे के लिए भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम जिम्मेदार है। मैम, डीएफएस को ये पावर्स कब दिए जाएंगे कि वो ऑडिट कर सके, या वो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जो लॉन्च होते हैं वो हर बिल्डिंग के लिए कर सके? उस पर कोई काम चल रहा है क्या सरकार? देखिए, बिल्कुल ये एक इस मामले को, इस फायर के बाद सरकार इस पूरे मसले को देख रही है। ये शायद एक रिकमेंडेशन जो मैजिस्ट्रियल जांच हो रही है उसकी तरफ से भी आए, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है उसके तहत फायर सेफ्टी उन्हीं बिल्डिंग को मिलती है जिन्हें ऑफिशियली बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट एमसीडी दे देता है। लेकिन एमसीडी पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण करवाता है तो वहां पे कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट का सवाल नहीं उठता, और क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट का सवाल नहीं उठता इसलिए वो फायर डिपार्टमेंट के पास आता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है जो आपने कहा कि फायर डिपार्टमेंट को और पावर्स देनी होंगी, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो ये भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है इसको नगर निगम से निकाल के बाहर फेंकना होगा, क्योंकि पिछले 15 साल में ऐसे अवैध काम कर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जेब भरी है,
और पूरी दिल्ली के लोगों की जान और माल पर खतरा पैदा किया है सिर्फ अपनी लालच, अपनी उगाही और अपनी गुंडागर्दी की वजह से। मैम, अभी कल रात नरेला में भी एक के बाद लगातार 2 फैक्ट्री में आग लगी है, तो इस संबंध में कुछ हो रहा है? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले की जैसे हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और इल्लीगल लाइसेंसेस एमसीडी देना बंद नहीं करती है, तब तक एक फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार सिर्फ एक कैचअप गेम खेलती रहती है कि जहां पर एक बारी आग लग गई उसके बाद आप वहां पे जाके उस पूरे एरिया की जांच करते हैं। लेकिन जब तक ये गैर कानूनी लाइसेंसेस, जब तक ये अवैध निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के आशीर्वाद से होता है, जब तक अपनी जेब भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम ये अवैध निर्माण, अवैध लाइसेंस देना बंद नहीं करता, तब तक कोई भी दिल्ली वाला सेफ नहीं है। आदेश और इन बिल्डिंग्स को नक्शा के जरिए नहीं बनाया गया अवैध तरीके से, मैंने उन्हें भी फायर लाइसेंस दिया जाए, इसके लिए सरकार की मदद करती है। नहीं, मैंने ये कहा कि इस पूरे मसले पर कि कैसे फायर लाइसेंसेस को देखने की जरूरत है, इस पर सरकार एक इन डेप्थ इसको एक एनालिसिस कर रही है कि पूरी दिल्ली में किस प्रकार से हम फायर सेफ्टी लेकर आ सकते हैं। डीएफएस डायरेक्टर ने कहा था कि जो बिल्डिंग अथॉरिटीज हैं, इवन एमसीडी है, रेलवे बोर्ड है, जो भी बिल्डिंग अथॉरिटीज हैं, वो जब हमको ऑनलाइन पोर्टल पर बिल्डिंग प्लान देती हैं, तब हम उस पर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अगर नहीं आता है प्लान तो उसमें हमको क्वेश्चन करने का राइट नहीं है। तो क्या इस राइट के लिए सरकार कुछ काम करेगी? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, इन पूरे कानूनों को हम देखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण और अवैध लाइसेंसेस क्यों दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं? ऐसा कैसे है कि जब कानून स्पष्ट तरीके से कहता है कि लाल डोरा एक्सटेंशन की जमीन में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो कैसे एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी की तरफ उसके लिए परमिशन दे दी गई, लाइसेंस दे दिया गया? ये कोई एक वन ऑफ घटना नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दिल्ली में इस तरह से इल्लीगल कमर्शियल एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के आशीर्वाद से चल रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दिल्ली में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो किसी भी प्रकार के सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से चल रही है। और ये इल्लीगल, चाहे वो निर्माण हो, चाहे वो लाइसेंसेस हो, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोटा पैसा खाते हैं। आप इनको, भारतीय जनता पार्टी ने तो 2017 में खुद माना था कि उनके पार्षद इतने भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए उनको अपने सारे कैंडिडेट बदलने पड़े थे। और उसका क्या नतीजा है? उसका सिर्फ ये नतीजा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अमीर हो जाते हैं और उनकी गाड़ी बड़ी हो जाती है और उनका बंगला बड़ा हो जाता है। उसका ये नतीजा है कि ऐसी इल्लीगल एक्टिविटी होती है जो एक आम इंसान की जिंदगी को खतरे में डालती है। उसका ये नतीजा होता है कि मुंडका जैसी बिल्डिंग में आग लग जाती है और 27 लोग अपनी जान खो जाते हैं। उसका ये नतीजा है कि दिल्ली में हर कुछ महीने बाद हमें पता चलता है कि कुछ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था जो ढह गया और बिल्डिंग के गिरने से किसी की जान को खतरा हो गया। ये है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का नतीजा। मैम, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, किस तरह के पावर्स फायर डिपार्टमेंट को देने की जरूरत आपको लगती है, जो कि भविष्य में मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी के बाद भी? देखिए, इसको अभी, इस पूरे मैटर को अभी इन डेप्थ में हम जांच रहे हैं, क्योंकि अभी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे आग लगी है और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से आग लगी है। तो कैसे फायर सेफ्टी नॉर्म्स को और बेहतर किया जा रहा है, दिल्ली सरकार इसको अभी, इस पूरे मैटर को, इसका एनालिसिस कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता एक सर्कुलर आजकल काफी ज्यादा दिखा रहे हैं। उनका ये कहना है कि शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है, उसमें जो माइनॉरिटी बच्चे हैं उनकी जो फीस है, ट्यूशन फीस है, उसको रिवर्स किया जाए। हालांकि ये सर्कुलर पहले भी आता रहा है, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के खास समुदाय की फीस आप माफ कर रहा है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहूंगी कि अगर उन्हें अपनी गुंडागर्दी, अपनी लफंगई वगैरह से समय मिले तो कुछ पढ़ लिख भी लें।
अगर वो सर्कुलर पढ़ेंगे और अगर वो उस पूरे सर्कुलर को ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये स्कीम दिल्ली के एससीज, दिल्ली के एसटीज, दिल्ली के ओबीसीज और 2 लाख रुपए से कम आय के माइनॉरिटी परिवारों के लिए है। ऐसी स्कीम्स पूरी दिल्ली में, पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी विभाग द्वारा चलाई जाती है। लेकिन समस्या क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गुंडागर्दी और अपनी लफंगई से समय मिले तब तो वो जाके कुछ पढ़े लिखें, लेकिन वो कुछ पढ़ने लिखने को तैयार ही नहीं है। तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि जो सर्कुलर है उसमें वास्तविक तौर पे लिखा क्या हुआ है, क्या स्कीम है और उसे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो किसके लिए है। भाजपा की माइनॉरिटीज की परिभाषा थोड़ी अलग है। आपने जो सर्कुलर जारी किया है उसमें माइनॉरिटीज की परिभाषा क्या है? देखिए, ये परिभाषा आपको और हमें नहीं बनाने की जरूरत। हमारा देश का संविधान बताता है कि एससी कौन है, एसटी कौन है, ओबीसी कौन है, माइनॉरिटी कौन है, कौन सी स्कीम्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हैं। इसकी परिभाषा आपको और हमें बनाने के लिए की ज़रूरत नहीं है। इसकी परिभाषाएं हमारे संविधान में ऑलरेडी बनाई गई। थैंक यू। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 5G ਟੈਸਟ ਬੈਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ। 5G ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 5G ਟੈਸਟ ਬੈਡ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਨਿਰਮਿਤ 5G ਟੈਸਟ ਬੈਡ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर से जुड़े सभी लीडर्स, देवियों और सज्जनों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, इससे जुड़े सभी साथियों को सिल्वर जुबली की बहुत बहुत बधाई। ये सुखद संयोग है कि आज आपकी संस्था ने 25 साल पूरे किए हैं। तब देश आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर काम कर रहा है, नए लक्ष्य तय कर रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे देश को अपना खुद से निर्मित 5G टेस्ट बेड राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिला है। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। ये देश के गांवों में 5G टेक्नोलॉजी पहुंचाने और उस काम में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों,
21वीं सदी के भारत में कनेक्टिविटी देश की प्रगति की गति को निर्धारित करेगी। इसलिए हर स्तर पर कनेक्टिविटी को आधुनिक बनाना ही होगा और इसकी बुनियाद का काम करेंगे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। 5G टेक्नोलॉजी भी देश की गवर्नेंस में, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इन अनेक विषयों में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है। इससे खेती, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हर सेक्टर में ग्रोथ को बल मिलेगा। इससे सुविधा भी बढ़ेगी और रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। अनुमान है कि आने वाले 1.5 दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में $450 बिलियन का योगदान होने वाला है। यानी ये सिर्फ इंटरनेट की गति नहीं, बल्कि प्रगति और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की गति को भी बढ़ाने वाला है। इसलिए 5G तेजी से रोल आउट हो, इसके लिए सरकार और इंडस्ट्री दोनों को कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत है। इस दशक के अंत तक हम 6G सर्विस भी लॉन्च कर पाए, इसके लिए भी हमारी टास्क फोर्स काम करना शुरू कर चुकी है। साथियों, हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप्स तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। अब इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आत्मनिर्भरता और स्वस्थ स्पर्धा कैसे समाज में, अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करती है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हम सब गर्व से कह सकते हैं, हमारा टेलीकॉम सेक्टर है। हम जरा पुरानी तरफ नजर करें, 2G का काल यानी निराशा, हताशा, करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, और आज उस कालखंड से बाहर निकलकर देश ने 3G से 4G और 5G और 6G तक की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथली, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है और इसमें TRAI की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हो या एजीआर जैसे मुद्दे, जब भी इंडस्ट्री के सामने चुनौतियां आई हैं तो हमने उतनी ही गति से रिस्पॉन्ड करने का प्रयास किया है और जहां जहां जरूरत पड़ी हमने रिफॉर्म भी किया है। ऐसे ही प्रयासों ने एक नया विश्वास पैदा किया। इसी का परिणाम है कि 2014 से पहले एक दशक से ज्यादा समय में जितना एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में आया है उसमें 1.5 गुना से अधिक सिर्फ इन 8 सालों में आया है। भारत के पोटेंशियल पर इन्वेस्टर्स के इसी सेंटिमेंट्स को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सभी पर है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार जिस तरह नई सोच और अप्रोच के साथ काम कर रही है उससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। साइलोज वाली सोच से आगे निकलकर अब देश होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। आज हम देश में टेली डेंसिटी और इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में सबसे तेजी से एक्सपांड हो रहे हैं, तो उसमें टेलीकॉम समेत कई सेक्टर्स की भूमिका रही है। सबसे बड़ी भूमिका इंटरनेट की है। 2014 में जब हम आए तो हमने सबका साथ सबका विकास और इसके लिए टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग को अपनी प्राथमिकता बनाया। इसके लिए सबसे जरूरी यह था कि देश के करोड़ों लोग आपस में जुड़े, सरकार से भी जुड़े, सरकार की भी सभी इकाइयां, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, स्थानीय स्वराज संस्थाएं हो, वे भी एक प्रकार से एक ऑर्गेनिक इकाई बन करके आगे बढ़े, आसानी से कम खर्च में जुड़े, बिना करप्शन के सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकें। इसलिए हमने जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को डायरेक्ट गवर्नेंस का माध्यम बनाना तय किया। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਲੇਰੀਆ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਲੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਜਕੁਲਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਢਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿ ਏਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ,
ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਲਏ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਪਲੱਸ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।